May the peace of Lord, grace, and Holy Spirit be with us all, with you all. Thank you, Heavenly Father, for this wonderful time, this privilege that once again that you have given it to us through the Holy Sanctuary Ministry, Father, the platform of Holy Sanctuary Ministry. So we gather here, we can worship and glorify and honor His name, Lord. Because there's no other God before you, there's no other God like you, there's no one none beside you who loves us so much, Lord, who is loving, kind, gracious, merciful Father. All the honors and praise and glories, Lord Jesus Christ. You is holy of the holy, who is and who is to come, and who is the King of heaven, King of earth, King of glory, King of angels, and King of us all. And the loving, kind, merciful Father, thank you for your love and grace and mercy and abundance, and thank you for everything, Lord. Thank you for this beautiful day and beautiful season, Lord. And thank you for the salvation. Thank you for the redemption. Thank you for your the reconciliation with the Father's love. That your love is so great, you love us so much that you cannot stay away from us, Lord. That is the reason you came down, and you're coming back soon as a King, Lord. And we are gathered here, Father, so we can praise and worship and glorify your name, Lord. Father, come and be present here, take a charge, and let the Holy Spirit fall down upon us, Lord. And your abundance, goodness, mercy be upon us, Lord. Your grace be with us all. Father, take a charge to let this meeting go smooth and effective. Father, we pray for all the participants who are about to join us, Lord. We rebuke and announce all the huddles and all the issues and all the problems of the electricities, and that issues be gone in the mighty name of Lord Jesus Christ. Father, your blessing and your grace be with everybody's, Lord. Once again, Father, that you bless everybody's, Lord, and let this meeting go smooth and effective so we can be blessed from it, Lord. And whatever you're about to speak to us today, Father, that you will bring it, you will speak through us, through your servants, Lord. You bless your servants and bless your name, and Lord. Blessed be the Lord Almighty, who is and who is to come. And our Heavenly Father, the God of Abraham, Isaac, and Jacob's. Father, take charge. We are asking in the mighty name of Lord Jesus Christ. Amen. We worship the Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise to you only. Holy are you, Lord. All the earth will shout your name, these hearts will cry, these bones will sing. How great are you, Lord? Oh, all the earth will shout your name, these hearts will cry, these bones will sing. How great are you, Lord? It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise to you. Holy are you, Lord. You give them. Thank you, Heavenly Father. Hallelujah. Hallelujah. We sing hallelujah to the Father, Son, and the Holy Spirit. Hallelujah. 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 Holy, 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 holy.
mighty, King of kings, Lord of lords. Holy is your name. Holy, 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 Lord of God, King of heaven, King of earth, King of glory, Lord of God, King of glory. Hosanna, 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 holy, holy Lord of God. Praise is your, O Lord of God. Glorious Father, Heavenly Father, Father, Son, and Holy Spirit, praise your name. Holy, holy, holy Lord, King of heaven, King of earth, King of glory, King of angels, Lord of lords, Heavenly Father, praise is your, O Lord my God. Jesus Christ, oh my sin, Yeshua, my Lord, holy, holy Lord of God. Hallelujah, 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 hallelujah. King of heaven, earth, and glory, you came down, O Lord, to show us who you are. Loving, kind, and merciful, gracious Father, gracious, merciful Father. Amen, 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 amen. Hallelujah. Hallelujah. You're the Lord God Almighty. Holy, 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 holy. You're the Lord God Almighty. Thank you, Heavenly Father, for this wonderful time. And thank you for your holy presence, dear Lord. Holy Spirit, thank you. Thank you for that you are with us, Lord. And thank you for your revelations. And thank you for your grace and mercy and abundance and goodness and your faithfulness, Lord. Thank you that you keep your promises all the times, Lord. But Father, that we honors and glorifies by your name, Lord. We'll be talking about the Jesus coming down onto the earth. Because was the first time Jesus came onto the earth, there was a reason that he came down to die. There was the purpose of the Father, that he has to fulfill all the laws and the prophets to come down and to save us for his own, by his own goodwill. As the scriptures say in John 12:24-27, truly, truly, I say to you, unless a grain of what falls into the earth and dies, it remain alone, but if it dies, it bears much fruit. Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in the world will keep it eternal life.
if anyone serves me, he must follow me, and where I am, there will my servants be also. Anyone serves me, the Father will honor him. Now is my soul troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour. But for this purpose I have come to this hours. Jesus is talking about that he came down here to die. He came down he was here down as a living sacrifice. So the living sacrifice, he's given his life to gain his life back. So he's trying to tell us that, we have to be living sacrifice onto the earth. And every day we have to die for the fathers. And we should give our life for the Heavenly Father so we can take our life back. This was the very reason Jesus came down to show us, because, when you are onto the earth, you should be living, you are living in the faith as a living sacrifice. The other reason is to seek and save the lost. Coming Jesus onto the earth the first time, all the mankind was lost, turned away from the Father. So he came down to seek everybody, to seek the lost, the one who already lost, not in the world, and they are their own, and they think, there's no more hope. So he brings to the lost sheep to the fathers to reconcile, so we can have abundant life. As the scriptures say, Luke 19:5 to 9, 9 to 10. It say, and when Jesus came to the place, he looked up and said to him, Zacchaeus, hurry and come down, from I must stay at your house today. And Jesus said to him, today salvation has come to this house, since he also has a son of Abraham. He also is the son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. From this parable, Jesus is saying that, Zacchaeus, Zacchaeus, the tax collector, his soul and his spirit was lost into the wilderness, lost. So he came to seek every single soul. So he bring the salvations, because he was a savior. So the reason he came down to bring salvation upon all mankind and seek the lost, and seek the lost so they can come home. And he came down to serve us. He said, I came down to serve you, not to be served, but to serve you. For even the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Mark 10, verse 45. Jesus is coming down to serve us, not to be served. He humbled himself. The God Almighty humbled himself to serve us and to show us, how you can live godly life, and how you can live, how you can have abundant life. This was also another reason Jesus came down. आइए हम खुदा उनके कलाम की तरफ बढ़ेंगे। हम यूनिका से कहेंगे कि वो खुदा उनके कलाम के लिए दुआ करें, ताकि फिर हम खुदा उनके कलाम को अपने दरमियान, जो हमारे दरमियान है, अपने बंदा के वसीला से हम खुदा उनके कलाम को सुने, ताकि हम सब बरकत पाएं। तो अपने सरों को झुकाएंगे, हम जिंदगी बख्श कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। खुदा आसमानी बाप, मैं दिल और दिल से आपका शुक्र अदा करते हैं खुदा कि आपने फिर से एक दफा मौका फरहाम किया था कि खुदा हम तेरे नाम को जला देते, नाम की तमजीद, तेरे नाम की सताइश करने वाले बने हैं खुदा। ऐ खुदा बाप, तो मैं छुआ में बड़ी बरकत है खुदा, मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे खुदा। जितने लोग खुदा ज़ूम पे ऑनलाइन है खुदा, इन सबकी बरकत चाहती हूँ। जितने लोग नहीं ऑनलाइन हो सके खुदा, उनकी लोग मेरे पास में राम दूंगा खुदा, तू सबको आराम देता है खुदा, तू अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है लोगों खुदा। जितना भी खुदा नेट का इशू है खुदा, उन सबका नेट का इशू खत्म करना है खुदा। शैतान की सारी रकावटें खुदा यीशु मसीह के नाम से दूर रहो खुदा। तेरा नाम जलाल पाए, तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदा। है खुदा,
जितनी देर तेरी प्रस्तिश की गई खुदा तेरे नाम के लिए, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होती गई। और खुदा अब वक्त है तेरे कलाम का, खुदा तेरे इल्हाम का। खुदा खुदा अपने बंदा को छुए, खुदा अपने बंदा को बड़ी बरकत दे। खुदा जो जो कलाम कर रहे हैं, खुदा जो लोग सुने हैं, खुदा अपनी जिंदगियां तब्दील करने वाले बने हैं। खुदा ऐ खुदा अपनी जिंदगी में फल लाने वाले बने, एक नहीं दो नहीं पूरा 100 गुना फल लाने वाले बने। और खुदा तेरे नाम को जलाल, तेरे नाम की तमजीद और तेरे ही नाम की सताइश होने वाली बने हैं। खुदा कलाम से जिंदगी को चुना, जिंदगी को बड़ी बरकत देना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन आमीन। आइए हम खुदा उनके जिंदा कलाम को जो हमारी जिंदगी के लिए रोशनी, हमारे राह के लिए Praise God, चराग है, hallelujah. हम उनको अपने दरमियान वेलकम करते हैं। और खुदा उनके बंदा को मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम से आता है। हम खुदावंद को Praise God, उसके hallelujah. नाम को जला देते हैं। आमीन। Amen, praise God. मसीह यीशु के जलाली बरकत मीठे और फतेहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। सो आए खुदावंद के पाक कलाम की तरफ। सलामती हो। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। सो खुदावंद का शुक्र करता हूं कि एक बार फिर से खुदावंद ने ये मौका बख्शा कि मैं आज रात खुदा के कलाम को बयान करूं। सो आए चंद लम्हात के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदा कदूस भर भर के खालिक और मालिक की हवा पाक खुदा, तेरा शुक्र करता हूं, तेरी तारीफ करता हूं कि तूने एक बार फिर से मुमकिन किया खुदा कि मैं तेरी आवाज को तेरे लोगों के दरमियान पहुंचाने वाला हूं। आसमानी खुदा सर से लेके पांव के तलवे तक, आसमानी खुदा मस्सा कर अपने कलाम इल्हाम से बर, ताकि आसमानी खुदा आज शाम आज रात जो भी कलाम हो वो रूह कुदस की तारीख से हो। और उस्मानी बाप से मिन्नत करता हूं कि आज रात कलाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियों की नौबत तौबा तक पहुंचे। यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांग कर पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। सो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो अजीम खुदा है, वो बला खुदा है, उसकी शफकत अब्दी है और उसका प्यार इंसान के साथ पुश्त दर पुश्त जो है वो कायम रहता है। सो मेरा दिल बड़ा शादमान है कि खुदावंद हमारी जिंदगियों में हर एक नया दिन इसलिए देता है कि हम खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़े। और जो लोग जिन्होंने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, खुदावंद बिलखुसूस एक नया दिन इसलिए देता है कि लोग खुदावंद की तरफ रुजू लाएं, तौबा करें और खुदावंद यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। सो कल रात जब खुदा की खादम अंजील की बुनियादी कर रहे थे पास्टर इरफान, तो मैंने स्पेशली बड़ी बरकत को जो है वो हासिल किया। मैं खुदावंद का बड़ा शुक्र अदा करता हूं कि हमारे साथ ऐसे खुदाम हैं और जिनको खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। सो आए अपनी नसीहत और अपनी तरबियत के लिए खुदा के कलाम में से सीखते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 5वां बाब और उसकी 43 आयत से लेकर यानी कि 43 आयत से लेकर 48 आयत मुकस्सर तक हम खुदा के पाक कलाम को सीखेंगे। कलाम अक़दस में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फक्त अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या फायदा, तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। उनका शुक्र हो। मेरे अजीज बहन भाइयों,
खुदावंद के जिंदा और जिंदगी बख्श पाक कलाम में से जो खुदावंद ने आज मुझे पैगाम दिया है, जो मेरी और आपकी नसीहत और तरबियत के लिए है। सो अगर हम चंद मिनटों के लिए जो इसकी 43 वर्स है उसको जरा गहराई में देखें या मजीद थोड़ा सा गहराई में जाएं, तो यहां पर हमें शरीयत के बारे में मिलता है। और शरीयत कहती थी, जिसका जिक्र 43 वर्ष में है, बस तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने 43 जी, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। यानी कि ये बातें जो हैं वो हमें शरीयत में मिलती हैं, लेकिन यहां पर खुदावंद यीशु अल मसीह जो उसके शागिर्द हैं, जो उसके पैरोकार हैं, जो उसकी हजूरी में रहते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रफाकत रखते हैं। सो मैं आप लोगों के लिए आज इस पैगाम को लेकर आया हूं जो खुदावंद ने मुझे दिया है, जो हमें इनकरेज करता है, जो हमारी हौसला अफजाई करता है। सो इसकी 44वीं आयत मुकस्सम में खुदावंद यीशु मसीह इस बात को कुछ यूं कहते हैं, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं, मेरा और आपका जिंदा खुदा, मेरा और आपका बनाने वाला, दुनिया को तख्लीक करने वाला यीशु अल मसीह, जिसके वसीला से पूरी दुनिया, पूरी कायनात और इस जमीन पर रहने वाली हर एक चीज उसके वसीला से वजूद में आई। और अब वही यीशु जो है वो मुझसे और आपसे कुछ कहने को है, और वो कहता है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं। और सच क्या कहता हूं? कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। यानी कि जो लोग आपसे अदावत रखते हैं, जो लोग आपसे दुश्मनी करते हैं, आसमान का खुदा और मेरा और आपका यीशु अल मसीह मुझसे और आपसे कहता है कि हमें अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखनी है, जो कि बड़ा ही मुश्किल है। लफ्जी मोहब्बत तो बहुत जाहिर की जाती है, लेकिन लफ्जी मोहब्बत इंसान को कभी भी पार नहीं लगाती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस जमीन पर मैं और आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, इस जमीन पर बड़ी मुसीबतें, बड़ी परेशानियां, बड़ी उलझने, बड़ी मुसीबतें, बड़े दुख और तकलीफें हैं। और आज इस जमीन पर मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ गई है। इस जमीन पर मोहब्बत इसलिए ठंडी पड़ गई है क्योंकि इस जमीन पर इब्लीस ने लोगों को गुमराह किया हुआ है। आज भी लोग गुमराही में जिंदगी बसर कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और सताने वालों के लिए दुआ करो, जो कि इस जमीन पर रहने वालों के लिए बड़ा ही मुश्किल काम है। आज ईमानदार, जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, जो अपने आप को बड़ा रास्तबाज कहते हैं, वो भी अपने दुश्मनों के लिए दुआ नहीं करते। अपने आप को बड़े कहते हैं कि हम बड़े मजहबी हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी इंसान की किसी इंसान के साथ अदावत हो जाए या लड़ाई झगड़ा हो जाए या हमें कुछ चंद बातें सुना दे, तो इंसान जब तक अपने दिल की भड़ास नहीं निकाल लेता उसको सुकून नहीं होता। या अगर कोई एक बात कहता है और जब तक हम उसको 10 बातें ना सुना दें हमें सुकून नहीं मिलता।
लोग मैंने खुद अपनी इन आंखों से देखा है, इन कानों से सुना है, और जब कहीं पर ऐसी बहसों तकरार होती है तो लोग कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बातों को जो है वो दिल पर लिख लिया है। लेकिन खुदा के कलाम इसके बरक्स तालीम देता है कि हमें अपने दुश्मनों के लिए दुआ करनी है, अपने सताने वालों के लिए हमें अपनी मोहब्बत का इजहार करना है, जैसी मोहब्बत मेरे और आपके यीशु मसीह ने रखी। लेकिन हम कैसी मोहब्बत रखते हैं? हम कहते हैं कि हमने तुम्हारी बातों को जो है वो अपने दिल पर लिख लिया है, और चाहे मेरी तरह लोगों को पढ़ना लिखना आता ना हो, लेकिन बातें वो दिल पर लिख लेते हैं। और खुदा का कलाम जो मेरे और आपके दिलों में होना चाहिए वो दिल पर नहीं लिखा जाता। अक्सर जब आप किसी भी चर्च में सरमन देते हैं और जब आप पूछते हैं कि कौन सा कलाम जो है वो सुनाया गया या किस हवाले को जो है वो आज विरद किया गया, तो लोगों को पता को नहीं लगता। और आप उनसे पूछ लें कि आपको 10 साल पहले आपको एक एक बात एग्जैक्ट वही बताएंगे जो उनके साथ पेश आई थी। और खुदा के कलाम के बारे में पूछेंगे तो बिल्कुल उन्हें कुछ पता नहीं होगा कि कौन सा हवाला जो है वो सुनाया गया या कौन सा हवाला जो है वो पढ़ा गया, क्योंकि हम खुदा के कलाम पर और ना ही खुदा के कलाम को अपने दिल में रखते हैं, ना उस पर अमल करते हैं और ना ही उस कलाम पर हम चलते हैं। आज घरों के अंदर आप अपने घरों के अंदर जरूर इस बात का मुशाहिदा करें, अपने इर्द गिर्द इन बातों का जरूर मुशाहिदा करें कि आज अपने दुश्मनों से लोग बात करना पसंद नहीं करते। आज मिनिस्ट्रीज के अंदर एक जगह पर खिदमत करते हैं और साथ में अदावत भी रखते हैं, एक जगह पर साथ चलते हैं लेकिन बुगस भी रखते हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल हमें कलाम मुकद्दस में से मिलती है। दुनिया का निजात दहिंदा खुदावंद यीशु अल मसीह, उसने एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल, एक मिसाल सेट की बाइबल मुकद्दस में। यहूदा इस्करियोती जो खुदावंद यीशु अल मसीह से दुश्मनी रखता है, लेकिन मेरे और आपके यीशु मसीहा ने उस शख्सियत को अपने साथ साथ रखा। हालांकि यीशु मसीह को पता है कि ये बंदा मुझे पकड़वाएगा। यीशु मसीह को हर एक बात के बारे में पता है कि यहूदा इस्करियोती जो है वो मुझे किस तरह से जो है वो जलील करेगा, किस तरह वो मुझे रुसवा करवाएगा। लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह ने उसे छोड़ा नहीं है। और आज भी ऐसा ही है। हमारे जो इर्द गिर्द जो हमारे साथ लोग होते हैं वो हमसे अदावत रखते हैं, वो हमसे दुश्मनी रखते हैं। लेकिन अगर हम भी वैसा ही उनके साथ बिहेव करें, वैसा ही सलूक करें, तो फिर हम में और उनमें कुछ फर्क नहीं रहेगा। और यहां पर मेरा और आपका यीशु अल मसीह इस बात पर जोर देता है कि हमें अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखनी है और अपने सताने वालों के लिए दुआ करनी है। हालेलुया। और इसकी एक एग्जांपल जो मैंने आपको बताई कि कलाम मुकद्दस में हमें खुदावंद यीशु मसीह की और यहूदा इस्करियोती की मिलती है। यहूदा इस्करियोती जो है, आप सबको पता है कि वो 30 सिक्कों के लिए खुदावंद यीशु मसीह को, दुनिया के निजात दहिंदा को जो है वो पकड़वा देता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसे छोड़ा नहीं है। यीशु मसीह को सब कुछ पता है। और आज भी वो जो लानती अबलीस है, जमीन जिसके कब्जे में है, आज भी वो यही कुछ करता आ रहा है। वो आज भी लोगों को वर्गलाता है और लोगों को इस्तेमाल करता है। इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आपको लाइक करते हैं या नहीं करते, इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फर्क तब पड़ना चाहिए अगर खुदा आपको अनलाइक कर दे। कोई बात नहीं, लोग
आपसे अदावत रखते हैं, कोई बात नहीं, खुदावंद यीशु अल मसीह से भी लोगों ने अदावत रखी। खुदावंद यीशु अल मसीह को भी जो है वो लोगों ने अच्छा नहीं समझा। और मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आप लोगों की हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु अल मसीह के ये जुबान मुबारक से अल्फाज निकले हैं कि जब लोग तुम्हें मेरे नाम से सताएं, लान तान करें, उस वक्त खुश होना, शादमान होना और खुशी करना। सो मेरे मेरे अजीज बहन भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, जब लोग हमसे अदावत रखें, जब लोग हमसे दुश्मनी रखें, तो हमें उनके लिए दुआ करनी है, उनसे मोहब्बत रखनी है, हमें उनके खानदानों के लिए दुआ करनी है ताकि खुदावंद उनको तब्दील करे, खुदावंद उनकी सोचों को, खुदावंद उनके ख्यालों को तब्दील करे, क्योंकि खुदा का कलाम ही है जो जिंदगियों को तब्दील करता है। खुदा का कलाम ही है जो कुदरत से भरा हुआ है। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, मेरा और आपका यीशु मुझसे और आपसे कहता है कि सिर्फ हमें, जिस तरह कि हमें शरीयत में कहा गया कि सिर्फ अपनों से मोहब्बत रखो और अपने दुश्मनों से अदावत, लेकिन अब ऐसा हमें नहीं करना। हम ये नहीं कि जो अपने हैं सिर्फ उन्हीं से मोहब्बत रखें। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मेरे और आपके यीशु मसीह ने सेट की, खुदा ने सेट की। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यह है उसकी मोहब्बत की लाजवाल मिसाल है, क्योंकि कोई किसी के लिए अपनी जान का नजराना नहीं देता, लेकिन मेरे और आपके खुदा ने मेरे और आपके लिए अपने बेटे यीशु अल मसीह को दे दिया। यह है वो मोहब्बत। और इसी मोहब्बत के बारे में मेरे और आपके यीशु मुझसे और आपसे कहते हैं कि हमें अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखनी है, हमें अपने सताने वालों के लिए दुआ करनी है। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपसे कोई अदावत रखता है या कोई आपके बारे में कुछ भी कहता है, आपने कभी भी पलट कर उसे जवाब नहीं देना, बल्कि आपने उसके लिए दुआ करनी है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि दुआ और रोजा हर चीज को जो है वो तब्दील कर देता है। दुआ और रोजा खुदा के इरादे को भी तब्दील कर देता है। जिस तरह खुदा ने नैनवा शहर के अंदर अपने इरादे को तब्दील किया, और दुआ और रोजे के अंदर इतनी कुव्वत है कि दुआ और रोजा हर चीज को तब्दील कर देता है। जब आपकी जिंदगी दुआया होगी, जब आपकी जिंदगी के अंदर रोजे और दुआ की कुव्वत होगी, तो फिर आपके दुश्मन आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और आप जब भी आप दुआ करें, आप अपने जो आपके सताने वाले हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपसे दुश्मनी करते हैं, वो कई तरह से जो है वो आप पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। बताना चाहता हूं, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रियां हैं जो इस वक्त तबाही की तरफ जा रही हैं। और क्या हुआ, उन्हीं के अंदर से उन्होंने एक दूसरे की जो है वो दुश्मनी करना शुरू कर दी। लोग एक दूसरे से अदावत रखना उन्होंने जो है वो शुरू कर दिया। एंड क्या हुआ कि वो मिनिस्ट्रियां जो है वो आज बर्बादी और तबाही की तरफ जा रही हैं। आज भी वो मिनिस्ट्रियां जो है वो टूट फूट का शिकार है। और आज घरों की हालत ऐसी क्यों है?
आज घरों के अंदर भी कुछ यही सिलसिला खार है। आज भी घरों के अंदर लोग एक दूसरे से अदावत रखते हैं, लोग एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं। अकाई का रूह नहीं है, उसकी वजह बड़ी सारी है। अकाई का रूह इस वजह से नहीं है क्योंकि लोग दुआ नहीं करते, लोग खुदा की हुजूरी में झुकते नहीं हैं, लोग खुदा की हुजूरी में गिरियाजारी नहीं करते। इसलिए ये चीजें जो हैं वो परवान चढ़ती जा रही हैं। और आज भी जरूरत इस बात की है कि हम जितना ज्यादा खुदावंद की हुजूरी में अपने आप को स्टैंडर करें, जितना ज्यादा हम खुदा की हुजूरी में रोजे रखें, तो खुदा जो है वो हमारे सारे दुश्मनों को जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे करते हैं, जो हमें सताते हैं, जब आप उनके लिए दुआ करेंगे तो मेरा और आपका जिंदा खुदा जो है वो उनकी सोचों को, उनके ख्यालों को जो है वो तब्दील करेगा। दाऊद कहता है, मेरा मुकदमा आप ही तू ले ले, भुलिया ना शरा में तेरी, मिन्नू तू रिहाई दे। मेरे अजीज बहन भाइयों, मेरे और आपके यीशु ने कहा कलाम मुकद्दस में कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो। हालेलुया, हालेलुया। ये इसलिए है, हमें अपने दुश्मनों से इसलिए मोहब्बत रखनी है, हमें अपने सताने वालों के लिए इस तरह दुआ करनी है जिस तरह मेरा और आपका आसमानी बाप कहता है, ताकि हम अपने आसमानी बाप के बेटे ठहरे। उसका बेटा बनने के लिए अपनी जिंदगी को दुख देना पड़ता है, अपने आप को तकलीफें देनी पड़ती हैं। जैसे कि हमने कल भी सुना कि मसीहत अपने आप को दुख देने का नाम है। हजार सानी जो खुदा के लोग हैं, उनकी जिंदगी में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तब जाकर उनकी खिदमत फलदार होती है, तब जाकर वो फल जो उनकी जिंदगी में होते हैं, उन फलों के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां बरकत को हासिल करती हैं। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, अगर हमें लायक तौर पर खुदावंद यीशु अल मसीह के बेटे और बेटियां बनना है, तो फिर हमें अपने दुश्मनों के लिए उनसे मोहब्बत रखनी है और अपने सताने वालों के लिए दुआ करनी है, जो कि बड़ा हमें मुश्किल लगता है। हम वक्ती तौर पर बहुत जल्दी, मैंने देखा लोगों को जो अपने आप को बड़ा कहते हैं कि हम बहुत मजहबी हैं, लोग वक्ती तौर पर फौरन से पहले जो है वो हाइपर हो जाते हैं। तो वो कहां गई, वो जो आपकी दुआएं कहां गई, आपके रोजे कहां पर गए, आपका वो सारा कुछ जो आप खुदा के लिए करते हैं वो कहां गया? इसका मतलब है कि आप डोंगी हैं, आपने एक निकाब जो है वो अपने ऊपर लिया हुआ है। हमें इस निकाब को उतारना है, इस निकाब से हमें बाहर आना है और उसके हकीकी तौर पर बेटे बनना है। ऐसा ना हो कि हम यहूदा इस्करियोती की तरह वो निकाब पहने हुए खिदमत के मैदान में, और जब वो निकाब उतरा तो आप देखें कलाम इस बात की गवाही देता है कि यहूदा इस्करियोती जो है वो सर के बल गिरा और फटा गया उसका पेट, क्योंकि उसके पेट के अंदर लालच था। पेट फटा, अंतड़ियां बाहर आ गई, और आज तक उस खेत को जो है वो खून का खेत कहा जाता है। और आज भी बहुत सारे लोग इसी तरह की खिदमत में जो है वो बढ़ रहे हैं। मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया था कि मैं इसी वजह से जो हमारी पुरानी मिनिस्ट्री थी उसको मैंने इसी वजह से लीव किया, क्योंकि जब लोगों का कारोबार सिर्फ समेटना हो जाए, जब लोगों का ये जो पैशन है, ये जो खुदा ने एक विजन दिया है, जब लोग इस विजन से हट जाते हैं और अबलीस जब उन्हें गुमराह करता है, जब अबलीस
उनके दिल में लालच डालता है। जब इब्लीस जिस तरह से यहूदा इस्करियोती के मन में ये बात डाली और उसने यीशु मसीह को 30 सिक्कों की खातिर बेच दी। और आज भी लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, यीशु के पीछे नहीं। आज भी बहुत सारे लोग मिनिस्ट्रियां, बस वो कहते हैं कि रातों रात हम अमीर हो जाएं, हमारे पास एक बड़ा बंगला हो, हमारे पास एक गाड़ी हो, और बस लोग हमें जो है वो सल्यूट करते हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह बिल्कुल इस बात के बारक्स हमें तालीम देते हैं। अगर हम यीशु मसीह की तालीमात पर अमल करें तो आए जरा देखें कि यीशु मसीह ने, जिसके पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार, जिसके ताबे हर एक चीज है, उसने किसी भी चीज को अपने कब्जा में न रखा, उसने अपने आप को खाली किया। बाइबल ये बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को खाली किया, लेकिन आज लोग ये चाहते हैं कि हम भर जाएं। चाहे हम खुदा के कलाम, खुदा के इल्हाम की कुदरत से खाली हो, लेकिन हम दुनियावी तौर पर भर जाएं, क्योंकि इब्लीस के कब्जे में है दुनिया। ये दुनिया इब्लीस के कब्जे में है, और इब्लीस यही चाहता है कि वो जितने भी लोग इस वक्त खुदा की खिदमत करते हैं, उसका ये एक बड़ा प्लान है, ये उसकी सोची समझी साजिश है। ये खुदा के लोगों को वर्गलाता है और उन्हें दुनिया की चमक और दमक दिखाता है, ताकि लोग उस चमक दमक को देखकर फिर उस तरह की खिदमत करना शुरू कर दें जिस तरह की यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ करता था। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, क्योंकि इब्लीस हर इंसान पर हमला करता है, और उसने यीशु मसीह पर भी हमला किया। जब मेरे और आपके यीशु अल मसीह दवाइया हालत में और रोजे की हालत में है, तो इब्लीस उनके पास आता है और कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है, और कलाम के वसीला से वो वार करता है, क्योंकि वो कलाम को खूब जानता है। उसने कहा, लिखा है कि तू इन पत्थरों से कह कि ये रोटियां बन जाए, क्योंकि लिखा है तो इन पत्थरों से कह दे तो ये रोटियां बन जाए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो खुद कलमा मुजस्सम है, कहता है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हालेलुया, प्रेज गॉड। फिर वो दुनिया की सारी शान शौकत यीशु अल मसीह को दिखाता है। कहते कि अगर तू मुझे गिर कर सजदा करे तो ये सारा कुछ मैं तुझे दे दूंगा, यानी कि काम के वसीला से। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। कलाम मुकद्दस में कि इब्लीस वहां से चला गया। आज भी इब्लीस के यही हरबे हैं, वो लोगों को, खादमों को घरों में ऐशो इशरत को दिखाता है और फिर लोगों को उसी में गिरा देता है वो। और आज बड़े सारे जो अपने आप को सूरमा समझते थे, वो इसी लालच में गिर गए, इसी लालच में बह गए वो, क्योंकि इब्लीस के पास बड़े सारे हथियार हैं और वो अपने हथियारों का वक्त पर इस्तेमाल करता है। लेकिन आज मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, हमें उन तमाम लोगों के लिए दुआ करनी। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा गया है कि हमें उन लोगों के लिए दुआ करनी है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि दुआ और रोजा हर चीज का तोड़ है। जो शख्स कहता है कि ये मेरा काम नहीं हो रहा, मैं उससे कहता हूं कि आप खुदावंद की हुजूरी में दुआ और रोजे में ठहर जाएं। खुदावंद आपके उस नामुमकिन काम को मुमकिन करेगा, क्योंकि जब आप दुआ और रोजे में खुदावंद की हुजूरी में ठहरेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत और अपने सताने वालों के लिए दुआ करोगे तो तुम, जो तुम्हारा आसमानी बाप आसमान पर है, उसके बेटे ठहरोगे, उसकी बेटियां ठहरोगे। हालेलुया। आगे लिखा है, वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है।
खुदा का पाक रूह, खुदा की कुदरत बदों पर भी और नेकों पर भी एक साथ बरसती है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। ये देखिए खुदा की कैसी कुदरत है कि वो नारास्तों पर, गुनाहगारों पर अपने मींह को एक साथ बरसाता है। यहां पर मैं आपको यीशु मसीह की शान अक़दस के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। मेरा और आपका यीशु जो है वो आया ही गुनाहगारों के लिए। यीशु मसीह इसलिए आया है कि हम सब जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। खुदा ने अपने बेटे यीशु अल मसीह को भेजा ही इसीलिए कि जो लोग गुनाह में हैं, जो लोग नाराजगी के अंदर हैं, जो लोग अंधेरे के अंदर हैं, उन पर खुदावंद यीशु मसीह की लाइट, रोशनी, जैसे ये रोशनी है, ऐसी रोशनी, इससे भी कहीं बढ़कर वो रोशनी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की उन पर चमके और वो तरीकी में ना रहे, बल्कि वो तरीकी से निकले और उस रोशनी में आ जाए, जो रोशनी हमें हमेशा की जिंदगी की तरफ लेकर जाती है। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आगे लिखा है, क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है। अगर हम अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए सिर्फ मोहब्बत का इजहार करते हैं तो यीशु कह रहे हैं कि फिर आपका कोई अजर नहीं है, आपकी वो सारी मोहब्बत जीरो है। अब यहां पर थोड़ा सा मुआवजा करते हैं खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत का, बाप की मोहब्बत का, पाक रूह की मोहब्बत का। यीशु अल मसीह ने सिर्फ ये नहीं कहा कि सिर्फ मैंने मसीहों के लिए खून बहाना है, उसने पूरी दुनिया के लिए, कौमों, कबीलों, उम्मतों के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया। लेकिन आज हम सिर्फ अपनों के लिए, अपनों की मोहब्बत में रहते हैं, अपनों तक अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। बाकी हमारा पड़ोसी या हमारा कोई जानने वाला या कोई बेचारा ऐसा गरीब मफलूज है, हम कहते हैं कि छोड़ो जी, हमें सिर्फ अपने जो हमारे जानने वाले हैं या जिनसे हम मोहब्बत रखते हैं, सिर्फ हमने उनसे जो है वो अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि फिर उसका कुछ भी अजर नहीं है। अगर आप सिर्फ अपनों के लिए करते हैं तो फिर उसके लिए कुछ अजर नहीं है। आगे लिखा है, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? सोचिए कि आप फिर खुदा का पाकलम आपको फिर किन के साथ मिलाता है, वो महसूल लेने वाले। और अगर तुम फक्त अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? यीशु कह रहा है कि अगर तुम सिर्फ अपने भाइयों को सलाम करोगे तो क्या ज्यादा कर रहे हो? कौन सा बड़ा तीर तुम मार रहे हो कि मैं बस जब सामने आ जाऊं तो बस जी सलाम, और मैं थोड़ा सा पीछे हुआ, वो तो बंदे ठीक नहीं है, या तो वो फलाना शख्स ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। कौन सी तलीमात है ये बाइबल की तलीम नहीं है, ये इंसान की अपनी तलीमात है। ये इंसान खुद से अपनी तलीम लोगों में बढ़ते, क्योंकि अबलीस गुमराह करता है, अबलीस जहनों को, सोचों को, ख्यालों को बंद करता है। और जब अबलीस बंद कर देता है तो फिर हम खुदा के कलाम को भी भूल जाते हैं। जिस तरह यहूदा इस्करियोती सब कुछ भूल गया। यीशु मसीह के साथ रहने वाला, यीशु मसीह के साथ मौजज़ात को देखने वाला, यीशु मसीह के साथ हर वक्त रहने वाला, वो सब कुछ भूल गया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को चेक करें कि हम एक दूसरे से कैसी मोहब्बत जो है वो रखते हैं। और आगे लिखा है, क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? यहां पर देखें कि हमें फिर खुदा का बेटा यीशु जो है वो फिर किन लोगों से मिलाता है। वो कहते हैं कि गैर लोग भी जो है, गैर कौमों के लोग जो है वो सिर्फ अपनों से मोहब्बत रखते हैं, वो दूसरों से मोहब्बत नहीं रखते। आज मेरे और आपके लिए एक खुदा ने बड़ा अच्छा मौका दिया, बड़ा अच्छा खुदा ने यह हमें वक्त दिया है कि हम अपनी जिंदगियों को रिपेंट करें, अपनी जिंदगियों को बहाली की तरफ लेकर जाए। और आगे लिखा है, बस चाहिए कि तुम कामिल हो,
जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। हालेलुया। तो Hallelujah. यहां पर मेरा और आपका यीशु मसीह जो है वो कहता है कि जैसा मैं कामिल हूं वैसे ही तुम कामिल बनो, जैसा मैं पाक हूं वैसे ही पाक तुम बनो, जैसा मैं नेक हूं वैसे ही नेक तुम बनो। आज जरूरत इस बात की है कि हम इन बातों से आगे निकलें कि सिर्फ हमने अपनों से मोहब्बत रखनी है, हमने सिर्फ जो हमारे चाहने वाले हैं या जो हमसे मोहब्बत रखते हैं, हमने भी अपनी मोहब्बत का सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ इजहार करना है। आज हमें इन बातों से निकलना है। यीशु मसीह यहां पर दो बड़ी खास बातें मुझसे और आपसे कहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, तो तब जाकर तुम खुदा के बेटे ठहरोगे। और यहां पर यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम कामिल बनना चाहते हो तो वैसे ही कामिल बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। जब हम उसके बेटे और बेटियां बनेंगे, जब हम प्रॉपर तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को अपनी जिंदगी में लेंगे, अपने आप को खाली करेंगे। और खाली किन चीजों से हमें करना है? दुनिया के लालच से। सबसे बड़ा जो दुनिया के अंदर इब्लीस इंसान को गिराने के लिए हथियार इस्तेमाल करता है, वो लालच का है। और लालच की वजह से बहुत सारे लोग गिर जाते हैं। सबसे पहले हमें लालच को, धोखे को, फ्रॉड को और जो निकाब लोगों ने पहने हैं, इन निकाब को जो है वो अपनी जिंदगी से उतारना बहुत जरूरी है। तब जाकर हम हकीकी तौर पर उसके बेटे और उसकी बेटियां बनेंगे। मेरे अजीज बहनों भाइयों, अगर हम यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने किसी भी चीज को कब्जे में ना रखा। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि मेरे और आपके यीशु मसीह के पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है। और आज वही यीशु मुझसे और आपसे कुछ चंद अहम बातें करना चाहता है। आज जरूरत इस बात के, जिस तरह उसने अपने आप को खाली किया, वो आसमान और जमीन का मालिक, और एक जगह पर बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह के पास बारे में कहती है कि उसके पास सर धरने के लिए भी जगह नहीं है। जमीन और आसमान का मालिक, हर चीज का वो मालिक, लेकिन उसने अपने आप को खाली कर दिया। लेकिन आज हम अपने आप को भरने के चक्कर में रहते हैं। मैं लाहौर नवा पिंड में कलाम सुना रहा था, तो मुझसे वहां पर एक शख्स ने सवाल किया। वो मुझसे कहते हैं कि भाई साहब आप कब से जो है वो खिदमत में है? तो मैंने उससे कहा कि यार मुझे तकरीबन 12 से 13 साल जो है ना वो खुदा की मुनादी करते हुए, अंजील की खिदमत करते हुए। तो मैनू कहते हैं कि तुसी हाल तक किराए दे हो। मैं क्या की मतलब, मैनू को तुम्हारे सवाल की समझ नहीं आई है। कहता यार मैनू 5 साल होए ने ते मैं इन्ना अच्छा 120 गज का घर बना लिया, ते तुसा 13 साल मुनादी की है ते हाले तक घर नहीं बनाया है। तो मैंने उससे कहा कि जनाबे वाला, गुजारिश है, कुछ अर्ज करने लगा, अगर आप बुरा ना मनाए। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा घर आसमान पर है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि जिस जगह पर तेरा तलवा टिकेगा मैं वो जगह तेरी कर दूंगा। वहां पर और भी बड़े सारे खादम जो है वो बैठे थे और वो बड़े खुश हुए, क्योंकि ये जमीन, मैं अक्सर एक बात करता हूं, ये जमीन हमारी रहने की जगह नहीं है और ना हमें इस जमीन पर दिल लगाना है। हमारी रहने की जगह आसमान है। हम जमीन पर घर बनाने के लिए तो बड़ी मेहनत करते हैं। क्या आज तक हमने कभी आसमान पर अपना घर बनाने की कोशिश की है, जहां पर मेरा और आपका आसमानी बाप है, जिसके हम बेटे और बेटियां हैं, जिसके साथ हमने हमेशा के लिए रहना है? उस घर के लिए मेहनत ही नहीं करते। और जमीन ते 5 साल होंगे ने ते बंगला भी आ जाता है, गड्डी भी आ जाती। उस घर की फिक्र करें जिस घर में आपने हमेशा के लिए रहना है, और जिस घर के बारे में मेरा और आपका यीशु मसीह कहता है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, ना होते तो मैं तुमसे कह देता। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे यीशु ने मेरे साथ ये वादा किया है, मेरा आसमान जो है वो, मेरा घर आसमान पर बुक है,
लिहाजा मुझे जमीन पर घर बनाने के लिए ना तो कोई जल्दी है और ना मैं इस कोशिश में हूं कि मैं जमीन पर घर बनाऊं। हमारा घर आसमान पर है। जो आसमानी है वो इन चीजों के बारे में सोचते हैं, और जो जमीनी है फिर, क्योंकि कलाम मुकद्दस में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि जहां पर तेरा माल है वहीं पर तेरा दिल भी लगा रहेगा। हमें जमीन पर खजानों को जमा नहीं करना, हमें आसमान पर अपने लिए खजाने को जमा करना है, क्योंकि बाइबल बयान करती है वहां पर ना तो कीड़ा लगेगा, वहां ना पर कोई चोरी होगी, ना कोई डाका पड़ेगा। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, यहूदा इस्करियोती ने जमीन पर खजाने को जमा करने की कोशिश की तो क्या हुआ? अगर आज हमारी भी यही सोच है कि हम जमीन पर माल को जमा करें, जमीन पर खजानों को जमा करें, तो कहीं ऐसा ना हो जैसा हाल यहूदा इस्करियोती का हुआ, कहीं मेरा और आपका हाल भी वैसा ही ना। यीशु मसीह कहता है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। यीशु मसीह को जितने भी लोगों ने सताया, यीशु मसीह को जितने भी लोगों ने मारा, सलीब पर यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और जब मैं आपको टू बी रियली ऑनेस्ट ये बात बताने लगा हूं कि जब लोग आपको सताते हैं, जब आप खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करते हैं, तो वो असल में आपको नहीं सताते, वो यीशु मसीह को सताते हैं, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। और जो कोई यीशु मसीह को सताएगा तो फिर उसका बदला भी वो खुद लेगा। हमें बदला लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि सिर्फ तुमने अपने सताने वालों के साथ उनके लिए दुआ करनी है, अपने दुश्मनों के लिए मोहब्बत को जारी करना है। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, खिदमत करना। कल बड़ी खूबसूरत बात एक खुदा की खादम कर रहे थे कि जब आप खिदमत करते हैं तो आप मसीह के दुखों में शामिल होते हैं, और जब आप बाइबल सुनाने के लिए निकलते हैं तो आप पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें, बहुत सारे जुमले, लेकिन उस वक्त वो आपको नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह पर वो सारी लान तान जो भी करते हैं वो सब यीशु मसीह पर करते हैं, क्योंकि आप उस वक्त यीशु मसीह के एम्बेसडर होते हैं, आप उसके एलसी होते हैं और आप उसके काम के लिए जा रहे होते हैं। खिदमत का काम इजी काम नहीं है, क्योंकि मैं अक्सर जब भी बाहरी इलाकों में अपने मुस्लिम भाइयों में, हिंदूज में, जहां कहीं कहीं पर भी हम लोग जाते हैं तो बहुत बार हमें अब मार भी खानी पड़ी, बहुत बार हमें गालियां भी सुननी पड़ी, बहुत बार हमें लोगों ने दुदकारा भी, हम पर थूका भी गया, लेकिन हम शादमान होते हैं, हम खुश होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जब लोग मेरे नाम से तुम्हें सताएं और तुम पर लान तान करें, उस वक्त तुम खुश होना, खुशी मनाना। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, जब भी आपको कोई लान तान करे, आपसे अदावत रखे, आपसे दुश्मनी करे, आपने उसके लिए दुआ करनी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको ये नसीहत करती है कि हमने अपने सताने वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ दुआ करनी है। और जब आप दुआ करेंगे तो फिर आसमान से मेरा और आपका यीशु जो है उसका बदला मुझे और आपको जरूर देगा। सो खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। Amen. Amen. Love your enemy, do good to those who hate you. Luke 6:27. हम क्रिश्चियंस लोगों की जिंदगी दूसरे लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरे हम रिलीजियस नहीं है, हम स्पिरिचुअल है। हम खुदावंद को, हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो खुदावंद की तरफ से आती है, इसलिए हमें उसी तरह होना है जिस तरह खुदावंद है। खुदावंद यीशु मसीह है कि उसने अपने दुश्मनों से प्यार किया।
तो आइए हम इस पाक कलाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। और मैं हमारे साथ पास्टर इरफान है, मैं उनसे कहूंगी कि वो कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें और इसके लिए बरकत चाहें। जिस तरह हमने बरकत पाई इस तरह दूसरे भी इसको सुने और उससे बरकत पाए। धर्म के खालिक को मालिक यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावन। तूने खुदावन सारे दिन हिफाजत निगहबानी की और खुदावन खूबसूरत इस लम्हे के लिए खुदावन जब हम तेरी बंदगी, तेरे प्रस्तिश और बेखसूस खुदावन तेरे कलाम की शरीनी से मीठी बातों के मुस्तफीद हुए खुदावन, इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते कि खुदावन तूने हमें खूबसूरत मौका फराहम किया कि खुदावन हम तेरी आवाज को तेरे लाम तेरे ममसू तेरे एलची के तवज्जो से सुन सके। मैं खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करता खुदावन इस बात के लिए कि तूने खुदावन अपने बंदा के तवज्जो से अपनी आवाज को खुदावंद ओ खुदावंद तमाम जिंदगियों में खुदावंद बांट, ताकि खुदावंद इस आवाज के वसीला से खुदावंद हर एक किस्म का इन दिलों को अंदर किसी किस्म का बोगस नफरत अदावत और अगर जन्म ले रही है तो आज इस कलाम की आवाज से इनके दिलों पर तारी शरब लगे और ये जिंदगियां जो गुनाह आलूदा जिंदगियां हैं बेखसूस खुदावन इनके जिंदगियों से हर एक किस्म की नफरतें जाती रहे। और खुदावन जिस तरह कलाम पाक में लिखा है कि अब तेरे मुंह की बातों को मैंने अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा जखीरा किया, इतने काम इस कलाम के शिनवा हुए आज इस कलाम के वसीला से वो बरकत हासिल करें। और जिस तरह खुदावंद हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तूने हमें जमा होने का मौका फराहम किया, तो हम तेरे ममसू तेरे एलची के लिए तेरी कसरत की बरकत को मैं मांगता और खुदावंद इल्तिजा करता कि हम सबको भी खुदावंद कामयाब की तरफ ले जा, ताकि खुदावंद हम कामिल इंसान और कामिल खुदा यीशु मसीह पर हमेशा अपनी निगाहें मरकूज रखें और अपने दुश्मनों से अदावत नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत रखे, ना सिर्फ मोहब्बत रखे, अगर वो हमें सताते हैं तो हम उनके लिए दुआ करें, उनके लिए खैरियत चाहे, उनके लिए सलामती चाहे, उनके लिए बरकत चाहे, क्योंकि खुदा तूने और हमें इसलिए बनाया, इसलिए पैदा किया कि हम इस दुनिया में रहते हुए खुदावन तेरे नाम को जलाल दे। और जब हम खुदावन तेरे बेटे के मुंह की इन बातों को तमाम दुनिया में अमलन जाहिर करें तो इससे हमें सब लोग जानेंगे कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह के शागिर्द हैं। हम खुदाम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदाम तेरे कलाम की बातों को हमने सुना और तेरे कलाम की बातों से मुस्तफीद हुए। तेरे बंदा के लिए, तेरे एलची के लिए कसरत की बरकत को मैं मांगता हूँ, उनके कुंबा उनके घराना के लिए कसरत की बरकत को मैं मांगता हूँ। बंदा की और खिदमत की हदूद को याबीज की हदूद की तरह वसी कीजिएगा, जगह भी तेरा बंदा जाए और तेरे दूर तेरे पिस्तगान उनकी हिफाजत उनकी निगहबानी के लिए निकले और तेरा बंदा इसी तरह दलेरी से, इसी तरह दयानतदारी और ईमानदारी वफादारी से कलाम की खिदमत को सरंजाम देता रहे और बेशुमार भक्ति हुई रूहों को जच्चे चुपान के करीब लाने का सबब बन सके, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। आइए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में सब शरीक होंगे। हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत कुदरत व जलाल हमेशा से तेरे ही है। आमीन। आइए हम कलाम बरकत जो है पास्टर इरफान के साथ अदा करेंगे। अब खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की रफाकत और शराकत तमाम मीटिंग में शामिल होने वाली जिंदगियों के साथ और जितने कान इस कलाम के इस मीटिंग के सुनवा हुए उनके साथ, उनके कुंभों उनके घरानों के साथ, खुदा की कौम बने इस्राएल और शहर यरूशलेम के साथ अब से लेकर अब्दुलबाद हमेशा से हमेशा तक होता रहे और खुदा के लोग कहे आमीन आमीन आमीन।
खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस. May His love, mercy, grace, Holy Spirit, peace be with us all. Amen.